وہاں پہ پاک افواج کے ان جانبازوں نے جا کر، ان شہیدوں نے جا کر، ان سپوتوں نے جا کر حکومت کی رٹ کو قائم کیا اور اس زمین کو ان تمام شورش زدہ افراد سے، ان تمام دہشت گرد عناصر سے اس زمین کو پاک کروایا۔ اور ناظرین، اس وقت آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اس وقت پوری تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آرمی کے شہیدوں اور غازیوں کو میرا سلام۔ محترم خواتین و حضرات، آج یوم شہداء کی دوسری تقریب کے موقع پر شکر گزاری اور اطمینان کے احساس کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے برس یوم شہداء کا آغاز اس تصور کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ہم وطن عزیز کی سرفرازی، استحکام اور سلامتی کے لیے پاک فوج کے ان جان بازوں اور جانثاروں کی خدمات کا اعتراف کر سکیں جنہوں نے اپنے خون سے قومی تاریخ کا ایک روشن باب رقم کیا، اور ساتھ ہی شہداء کے اہل خانہ کو یقین دلا سکیں کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر، مشکل کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم کوئی شہادت بھولے نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام بھی اپنے شہیدوں کی قربانیوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے اب تک ہماری مسلح افواج نے آزمائش کی ہر گھڑی میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ سرحدوں کی حفاظت کا مرحلہ ہو، سیلاب اور زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کا مرحلہ، یا دہشت گردوں سے وطن کو درپیش خطروں سے نمٹنے کا مرحلہ، پاکستانی فوج اپنے فرض سے کبھی غافل نہیں ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہیروز کی زندگیاں اور کارنامے آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اثاثے کے امین ہیں جو شہیدوں کی لازوال داستانوں سے ترتیب پاتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیادیں لاکھوں شہیدوں کے لہو پر قائم ہیں۔ ہمارے شہداء ایک نصب العین کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور حیات ابدی سے سرفراز ہوئے۔ ان کی شہادت ایک عظیم نصب عین سے ہمارا رشتہ اور تعلق لافانی بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہماری مسلح افواج کا ہر جوان وطن کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر محاذ پر مسلسل داد شجاعت دیتا چلا آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک اکائی ہیں۔ ہماری قومی طاقت اتحاد، باہمی اعتماد اور استقلال ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حالیہ جنگ میں پاکستان کے عوام نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جان و مال کی بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ استحکام پاکستان میں پوری قوم کا افواج پاکستان کے ساتھ تعاون اس ناقابل تسخیر اتحاد کا
मजहर है। यही इत्तेहाद ख्वातीन व हज़रात पाकिस्तान को सही मानों में मजबूत बनाता है। इस हकीकत में शक की ना कोई गुंजाइश है और ना होनी चाहिए। ख्वातीन व हज़रात, आज हम पाकिस्तान की तारीख के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें मुश्किलात का सामना है। तारीख शाहिद है कि कौमों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं। जिंदा और आज़ाद कौमें इसे एक चैलेंज समझकर कबूल करती हैं। जो कौम इससे सुरखरू होकर निकले वो अपने अंदर एक नया एतमाद पाती है और तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाती है। आज ख्वातीन व हज़रात, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इन हालात को समझें, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें और बहैसियत एक कौम शाने से शाना मिलाकर खड़े हो जाएं। ये तभी मुमकिन है जब हम उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें और अपना ख्वाब जिंदा रखें, एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब। मुझे मुकम्मल यकीन है कि बहैसियत एक कौम हम में ये सलाहियत मौजूद है। हमारे अवाम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकते हैं। हमारे हुनरमंद नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हमारे नौजवान हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ख्वातीन व हज़रात, ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम मायूसी और नाउमीदी को अपने ऊपर तारी ना होने दें। हर पाकिस्तानी कुर्बानी के जज्बे से सरशार हो और हम ये समझें कि कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बन कर निकलती हैं। पाकिस्तान को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने का ख्वाब मुमकिन है और हम इस ख्वाब की ताबीर हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पर हमारा यकीन मुस्तहकम हो। हम सबको अपने मफादात से बारातर होकर एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हम सब पर फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बनाया, इसे मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाकर अगली नस्लों का मुस्तक़बिल महफूज बनाए। ये हमारी नस्ल का फ़र्ज़ है। ख्वातीन व हज़रात, हमें कायदे आज़म की ये अल्फाज हमेशा याद रखने चाहिए। उन्होंने फरमाया, हमने पाकिस्तान की आज़ादी की जंग तो जीत ली, मगर आज़ादी को बरकरार रखने और इसे मजबूत और ठोस बुनियादों पर इस्तवार करने की जंग अभी जारी है। अगर हम एक अजीम तर कौम की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहते हैं तो इस जंग को भी कामयाबी से हमकनार करना होगा। ख्वातीन व हज़रात, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तमाम मुल्कों से खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हों। हम जानते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। हमारा हर कदम अवाम की खुशहाली और हिफाजत की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन महज खुशहाली के लिए हम अपने इज़्ज़त और वक़ार का सौदा कभी नहीं करेंगे। अहले पाकिस्तान इज़्ज़त और वक़ार से जीने का अज़म कर चुके हैं। हमारे कौमी मफाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका तयन करना सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानियों का हक है और हिफाज़ पाकिस्तान इस अज़म में अवाम के साथ है। ख्वातीन व हज़रात, मुसलमान मौत से नहीं डरता। शहादत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है।
जो किस्मत वालों को अदा होती है। ज़िंदगी का नजराना देखकर जावेदां ज़िंदगी की नेमत अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम और बड़ी इज्जत और सादत की बात है। शहीदों के ख़ानदानों के अफराद के लिए और पाकिस्तानी मुसल्लह इफ़ाश के लिए इन साथियों की शहादत बड़ी आजमाइश का मरहला है जो अब हम में नहीं। इसका रंज, इसका मलाल फितरी है। हम अल्लाह ताला से शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं जिन्होंने इस अजीम कुर्बानी की अहमियत को समझा और इस पर सब्र किए। हम इनके एहसानात को भूले नहीं हैं और हर कदम पर उनके साथ हैं। ख्वातीन व हज़रात, हम वन फोर्स, वन फैमिली एंड वन नेशन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सिपाही, पाकिस्तानी शहीद, ज़िंदगी हो या शहादत, हर कदम पर एक दूसरे के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। आखिर में आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी GHQ के सब्ज़वार में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि यौम पाकिस्तान का मकसद इस बात का एतराफ़ करना है कि उन शोहदा की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया जाए जिन्होंने अपना खून देकर कौम को ज़िंदगी दी। उन्होंने कौम से कहा कि वो आस का दामन हाथ